Okay, welcome back to these questions. So question is saying that take the two integers from the user. If the sum of the second list is a multiple of 5, then it should copy the content of the first list. Otherwise, the first list should be copied, the content of the second list. After cloning is done, check whether the original list and the clone are the same. ओके इज आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करना है. ओके यहाँ पे टेस्ट कैसे हम समझ लेते हैं. ये आपका एक फर्स्ट टेस्ट केस आ रहा है, सेकंड सॉरी लिस्ट आ रहा है, यहाँ पे सेकंड लिस्ट आ रहा है. उसके बाद आपको क्या करना है, इसका सम निकालना है. राइट अगर वो डिविजिबल बाय 5 है तो देयरफॉर लिस्ट ए इज़ कॉपी टू लिस्ट बी एंड प्रिंट बी. राइट एंड देन आपको इज यूज़ करना है. सो सेम थिंग विल बी डूइंग हियर. आई विल से हियर list 1 is equal to, and I will use here list, then I will use here map function, then I will use here integers, right, comma, then I will use here input, and after input I will use here dot split. Right, that's it. And since they are separated by spaces, so I will keep here space as it is. Right, then I have to create the list 2, and I will say list 2 array naam bada rakha. List 2 is equal to list, and here I will say the map and int comma input, then dot split by space. Right, that's it. And after that, what we have to check, if sum of list 2 percentile 5 is equal to 0. If it is equal to 0, then what we have to copy or clone, we can say. So how to do that? So I will say list 2 is equal to list 1, and I will be copying all the elements like this. Right, so आप double columns भी रख सकते हो. If this is the case, then we have to print list b. So I will say here list 2, and after that क्या करना है. Okay, if true and false किससे आ जाए is, so I will say here print, and I will say list 2 is list 1. Right, that's it. Now if I submit it, there is some issue, list 2 has not been printed. Okay, error कहाँ पे. unsupported this sum of sorry list 2 percentile, पहले तो सम निकालेंगे ना. so I'll say here percentile 5 is equal to 0. right, so पहले इसका सम निकालेंगे, उसको देखेंगे divisible 5 है कि नहीं. right, okay, so this is clear. Now the next question that you are having is something like that. The problem is to take a list of strings and consider each string as a key and its length. उस की का length निकालना है और उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और आपको डिक्शनरी बनानी है और डिक्शनरी प्रिंट करना है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे क्या है, एक 1 आ रहा है, सेकंड इज 2. तो 1 में कितने कैरेक्टर्स हैं, 3. सो 3 इंटू 5 इज 15. 2 में कितने हैं, 4 कैरेक्टर्स. सो 4 इंटू 5 इज 20. राइट, सो लाइक दैट. इसी टेस्ट के साथ यहाँ पे एक ही है सिंगल कैरेक्टर. सो 1 into 5 is 5. Like that you have to create a dictionary. Right, so if you'll see here, they have took the input string from the user. Right, and उसको फिर किस में कन्वर्ट कर दे, लिस्ट में कर रहे कन्वर्ट. वी नो दैट इनपुट इनडायरेक्टली यहाँ पे इनपुट ही आ रहा है. इनपुट विद स्प्लिट इज क्रिएटिंग ए लिस्ट. राइट, सो देन आपको रिजल्ट यहाँ पे क्रिएट करना है. राइट, सो एंड लेट मी राइट द कोड हियर, कंप्रेहेंसिव कोड. सो आई विल राइट इट समहाउ लाइक दिस. सो मेरे पास क्या है, आई एम हैविंग द वर्ड. सो आई विल से फॉर वर्ड in words. right, and मेरे पास word आ जाएगा. तो अब मैं इसका की बनाऊंगा. की क्या बन जाएगा, word itself. right, colon, and यहाँ पे length of word मैं निकालूंगा, that's word, and into 5. that's it, and it's submitted. all the test cases are passed. right, ये चीज़ आप फॉलो के अंदर लिख सकते हो. ये ऐसे है, ऐसे समझ लो लिस्ट कंप्रेहेंशन कैसे है. आप यहाँ पे ऐसे कर रहे हो कुछ. फॉर यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस. फॉर word in words. right, for word in words, and then you are doing something like this. आप यहाँ पे एक empty dictionary create कर रहे हो. so let me create here empty dictionary. I will say dic is equal to this empty dictionary, and I will use here colon, and I will say here dic का word equal to length of word. इसको मैं इंटू कर रहा हूँ 5 से. दैट्स इट. राइट, देन मैं डिक्शनरी को प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे. गॉट इट. दिस एंड दिस थिंग इज सेम जो मैं यहाँ पे लिस्ट कंप्रेहेंशन में कर रहा हूँ. ओके, यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी. यहाँ पे डिक्शनरी डायरेक्टली बन जाती है. लेट्स मूव द नेक्स्ट वन.
Okay, see the next question. The question is like that: take the two inputs of the integer from the user. If the sum of the second is divisible by 5, copy the first. Otherwise, copy the second in first one. After that, please. Okay. After that, what you have to do is, then what you have to do is you have to do after cloning आपको ये करना पड़ेगा is operator. जैसे पहला वाला क्वेश्चन था वैसे ही है. So what I will do here is I will take the input from the user. Let's say I will say t1 here. T1 is equal to directly I will convert it in the tuple here. I will say tuple and I will use the map function. Map के साथ I will use here int. Int के साथ I will use here what input, and input के साथ I will use here dot split, which are separated by spaces, right? Same thing, I will take the tuple 2 is equal to tuple, and I will use here map and int comma input and dot split and separated by spaces. Then I will check the if sum of t2 यानी कि tuple 2 percentile 5 is equal to 0. अगर वो 0 के बराबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? We have to do something like this. I will copy the tuple 1 into the tuple 2. I will say tuple 2 is equal to tuple 1, right? This is the case. Else करना पड़ेगा? I don't think so. पहले वाले में तो else नहीं किया था. So I will say here print and I will say here t2 t2 को पहले print करना पड़ेगा. After that what we have to do? We have to print t2 is t1. t2 is t1, right? So if I submit it here, okay, it is throwing an error. Line number 1 में error है. Okay, when you are getting this kind of error ना तो देख लो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. यहाँ पे input में क्या है? Comma separated है. मैंने क्या रखा है? Space separated. So what I will say here, comma separated, and here as well comma separated, right? And if I will run this program, यहाँ पे false आ रहा है and tuple 2 is same as tuple 1. बट आना चाहिए true. Okay, else लेना पड़ेगा फिर. I guess they have sent it here. First tuple, otherwise first tuple should copy the content of the second tuple. Okay, else भी part यहाँ पे रखना पड़ेगा. So what I will say here is I will say here else, and else में क्या करूँगा? t1 is equal to t2, right? So if I will submit it here now, ऑल द टेस्ट के साथ पासवर्ड आई गेस पहले वाले में हमने थोड़ी सी गलती की है तो उसमें वो रेक्टिफाई कर देना, वहाँ पे भी एल्स पार्ट रख देना एंड वहाँ पे लिस्ट 2 को कॉपी कर देना लिस्ट 1 में. ओके, लेट्स पुट द नेक्स्ट वन. Okay, next question is like this. Your task is to print the dictionary with the keys where only lowercase characters are to be converted to the uppercase characters, and then in the given string value of the square of the integer values as okay. समझ गया क्वेश्चन. यहाँ पे क्या है, आपको इनपुट स्ट्रिंग आ रहा है ABC एंड वैल्यूज आ रहे हैं 1 2 3. अब इनका आपको क्या बनाना है? डिक्शनरी वेयर यू हैव टू कन्वर्ट द कीज इनटू द अपर केस एंड बी को किस में दीज वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करना है? स्क्वायर ऑफ दीज नंबर, लाइक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9 काइंड ऑफ दैट थिंग. और इनको क्या करना है? अपर केस में. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इनपुट से एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, like we know it's a string, तो ये सारा this thing it will be in a double quote, right? So but हमें क्या करना है? 1 2 3 is a 1 character या 1 value, ABC is a second value, this is a third value. तो हम क्या करेंगे? उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने. तो लिस्ट में कन्वर्ट करने क्या यूज़ करते हैं हम? डॉट स्प्लिट, राइट? इनपुट इंस्टेंस यूज़ किया, इसमें सेव कर दिया, तो उस स्ट्रिंग के ऊपर हम डॉट स्प्लिट कर रहे हैं सेपरेट बाय स्पेस. तो यहाँ पे क्या बन रहा है? वर्ड्स का एक लिस्ट बन रहा है जहाँ पे 1 2 3 इज प्रेजेंट इज पोजिशन 0 पोजिशन 1 पोजिशन 1. ये क्या बन जाए? लिस्ट है, राइट? यहाँ पे वैल्यूज़ ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं हम यूज़र से, राइट? ये ले रहे हैं, बट दिस होल इज़ नाउ इन ए स्ट्रिंग. अगर मैं बोलूँगा वैल्यूज़ ऑफ 0, तो वैल्यूज़ ऑफ 0 10 नहीं आएगा, वैल्यूज़ ऑफ 0 क्या आएगा? आपका 1, राइट? बट हमें क्या चाहिए? 10. तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे स्प्लिट यूज़ करूँगा. तो स्प्लिट यूज़ करने से हम क्या बना रहे हैं? इसका लिस्ट बना रहे हैं. वाई टेल इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 0, 100 एट इंडेक्स नंबर 1 एंड दिस 1000 एट इंडेक्स नंबर 2, राइट? सो ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है. बट वी नो हियर कि जब आप स्प्लिट यूज़ कर रहे हो तो हर एक कैरेक्टर को क्या लेता है? वो एज ए स्ट्रिंग, और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन इंटीजर यूजिंग द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे, राइट? दैट मीन्स दिस 10 कन्वर्ट हम स्ट्रिंग 10 से कन्वर्ट करें इंटीजर में. अगर आपको मैप फंक्शन अच्छे से समझ आ चुका है तो ये चीज़ सारी चीज़ें मैप फंक्शन एक लाइन में कर रहा है. गेटिंग दिस पॉइंट? ये जो चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये ना मैप फंक्शन एक लाइन में कर देता है, इफ़ यू रिमेंबर इट, राइट? सो यहाँ पे आई विल राइट माय लॉजिक नाउ. अब क्या करना है? अपर केस में करना है कन्वर्ट. सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? सिंस अब मेरे पास 2 लिस्ट है, एक लिस्ट तो ये है, एक लिस्ट तो ये है. वी नो दिस इज प्रेजेंट इंडेक्स नंबर 0, ये भी इंडेक्स नंबर 0 पे, ये इंडेक्स नंबर 1 पे, ये भी इंडेक्स नंबर 1 पे, ये इंडेक्स नंबर 2 पे, ये भी इंडेक्स नंबर 2 पे. सो फॉर दैट आई विल यूज़ हियर फॉर आई इन रेंज
किसका रेंज में, लेंथ ऑफ, बिकॉज रेंज फंक्शन इज टेकिंग द न्यूमेरिक वैल्यू, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा लेंथ ऑफ वर्ड्स। अगर आप यहाँ पे लिखो रेंज ऑफ वर्ड तो वो एरर देगा, क्योंकि रेंज इज टेकिंग ए न्यूमेरिक वैल्यू, राइट। सो अब आई में हमारे पास क्या होगा, 0 1 2, वही 0 1 2 हम यूज़ करेंगे। मैं क्या बोलूँगा इसको, वर्ड्स के 0 में जाओ एंड सॉरी 0 नहीं, आई में जाओ एंड उसको क्या करो, डॉट अपर में चेंज कर दो उसको, राइट। एंड यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, तो डिक्शनरी के लिए कॉलम वी हैव टू यूज़ एंड इस क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है वैल्यूज़ का। तो मैं क्या बोलूँगा, वैल्स में जाओ, इंडेक्स नंबर 0 आई पे जाओ, इनिशियली 0 होगा एंड उसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, राइट। दैट्स इट एंड इफ आई सबमिट इट, all the test cases are passed now here, right? So I hope you understood it. Thank you so much. See you in the next one.